Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hello and welcome everyone. Thank you for taking the time to join us today. My name is Aisha Mahmood and I am the ETP STP coordinator at Association of Muslim Professionals, abbreviated as AMP. Before starting the session, I will request all of you that if you have any queries, kindly write down your questions in the Q&A box. If somebody wants to say something or want to ask something or directly ask to the speaker, kindly raise your hands. I'll be giving you the permission to talk. And all those questions we will be taking at the last of the session. So I would request you not to interrupt in between. And if in the meantime, sir asks something, you may either answer in the chat box or you can raise your hand to answer directly. All right, so I'll start with the introduction of AMP. For that, I will share my screen. Hello and welcome everyone. Uh, AMP is a non-profit organization with an on-ground presence in more than 140 active chapters spread across 26 states in 20 countries with almost 6,000 active members. AMP mainly works in three domains: education, employment, and empowerment. AMP has many achievements to its credit under its main flagship projects and keeps adding new ones as the need arises. SDP or School Development Program has sessions for all stakeholders in the education field. EAC or Employment Assistance Cell, launched in 2014, conducts job fairs and job drives, and it also conducts ETPs in colleges. So far, AMP has conducted more than 40 job fairs and around 250 job drives, bringing job seekers and corporates together and facilitating the placement of more than 15,000 needy candidates. It regularly runs career guidance seminars at more than 50 different locations in India, benefiting more than 10,000 students every month. AMP has supported more than 500 needy and deserving students by funding their higher education. It has helped more than 500 orphans with basic education. It has supported more than 200 poor and unemployed with its self employment schemes in the past 5 years. New digital initiatives by AMP are: first one is indiazakat.com. It is India's first online zakat crowdfunding platform and was launched in April 2020 to liberate Indian Muslims from poverty and to set the individual on the path of self sustenance. Second, the India Mentors or TIM is an online mentoring platform that is free and open to all. It envisions a fully educated and empowered student community where no one is left out of the wheels of progress and development due to lack of awareness and guidance. EmpowerJobs.com is an online portal started in October 2020 which endeavors to connect the right talent to the right opportunity. Talking about the reach of AMP, it is also present in the Middle East with chapters in Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, and UAE. And active volunteers are present in Singapore, Malaysia, South Africa, Oman, Bahrain, UK, US, and Canada. Lastly, I would like to emphasize that more than anything else, it is the rope of Islam that the members of AMP hold on to while treading the strenuous path of empowerment of the Indian Muslim community in particular and the society as a whole in general that has been responsible for the phenomenal growth that AMP has achieved in just over a decade. Now, without further delay, I would like to introduce our speaker for today, Mr. Atiq Sheikh, the co founder of PersonalityMatrix.com, who is having a tech degree in textile and he has done
MBA in Advanced Program on Marketing from IIM Calcutta. Rest other is is to be shared by Mr. Atik. So I will request sir over to you. Assalamu alaikum. Thank you very much, Miss Aisha ma'am, for the introduction and coordinating with the participant and making this event. And this event will be helpful for the students entry career levels and the person who is willing to find a job in an open market. You consider it in India, Asia, or anywhere. This session will give them an edge so that they can get benefit of it. So my name is Atik Sheikh, and I with a team of my friends founded this company Personality Metrics. This company is formed in 2020, where we focus on developing behavioral methods, making students starting level candidates to be ready for the employment. Apart from this, we have a team who coaches higher management so that their leadership skill can be developed and they are ready to take higher challenges. In the duo course, I will share about my profile. Meanwhile, I request all the participants to write from where they are joining, and what is their educational qualification, and what is they wanted to have a job. Means if someone wants to pursue a job of sales, accounts, anything, compliance, quality, engineering, teacher, whatsoever they wish, they can write. And mode of communication, I would like to continue with normal Hindi and English communication, क्योंकि most of the participants would be easily understand if the direct communication will be in an local language. So I'll start my session. Meanwhile, I'll wait for 2 to 3 minutes or 5 minutes, say, so that I can get the replies for the participants. Apart from this, I would be more than happy. मुझे बहुत खुशी होगी कि जो भी participants है वो क्वेश्चन रेस करे और इंटरैक्टिव हम बात करें, रादर देन 1 घंटा हम बात करें और आप सुनते जाए। इससे बेहतर ये होगा कि आप हमें कोई भी क्वेश्चंस बीच में रेस करे, या फिर आप हमें बीच में चैट पे क्वेश्चन रेस करे, क्वेश्चन आंसर्स के बाद रेस करे, और कोई भी अगर आपको चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप उसे चैट में लिखे। सो देन इट गिव्स एन एज एंड इनटू टू अ ट्रेनर कि वो फायदा हो जाता है, उसको भी फिर इंटरेस्ट आता है बताने में। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम इट गोज एज अ वेबिनार, एज अ वन वे स्पीच ओनली, so it doesn't helps to the trainer as well as and participants as well. तो हम लोग आज सैटरडे का 11:15 से टाइम इस चीज के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस चीज से हम कुछ अच्छी चीजें सीखे जो हमारी लाइफ में काम आए, हमारा जो जॉब सर्च का जर्नी है उसमें हमारे को थोड़ी सी मदद हो, ये उम्मीद करते हुए हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। मुझे चैट्स में मिले हैं, and I had Sophia Sayyed. Is pursuing second year bachelor's of accounts, Navi Mumbai se, short term job accounting, and she's long term for charter accountant. She's pursuing. I got only one. I mean, if anybody wanted to attend, I will wait for the 3 to 4 5 minutes. So anybody can write. They can write directly to host, or they can write in a session like everyone, so that everyone can be visible. We'll wait for 2 minutes. Okay, we have a quite good participants. Abdul Mannan, he is from Shipping Executives. Farheen Naz, pursuing BTech CSC from IIT Bhubaneswar, from Odisha, left the cognizance. Someone 10 plus 2 education from Jammu and Kashmir. IIF is from my dream pilot projects. So these are the few ones. Okay, so I'll starting the session now. Okay, so if I would like to tell about myself, I have complete basically I'm belonging from the city of Bhandara
ये एक महाराष्ट्र के मध्य प्रदेश साइड पे कनेक्टेड एक टाउन है। एंड देन वहाँ से मैंने स्कूलिंग की थी एंड कंप्लीटेड इंजीनियरिंग फ्रॉम वेस्टर्न महाराष्ट्र की एक शिवाजी यूनिवर्सिटी है वहाँ से। आई एम द इंजीनियरिंग पास आउट ऑफ 2002। I completed my engineering in textiles and then started career from the renowned companies in textiles, Bombay Dyeing, Welspun, Himmat Sinka, etc. I have an international exposures as well, where I communicated with the executives of Walmart, Carrefour, IKEA, Asda for the business development, product development, and for team management, everything. I have also completed a course and MBA from IIM Calcutta, that is an added qualification in advanced marketing skills that I acquired from them. So that is something about my corporate career which I chalked out and I turned out. उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों ने एक मैं मी माई सेल्फ अतीक शेख और एक हमारे पार्टनर है डॉक्टर KN त्रिपाठी, कृष्णा जी त्रिपाठी। तो हम दोनों ने मिलके एक पर्सनैलिटी मैट्रिक्स करके एक फॉर्म एस्टेब्लिश की है। ये हम लोग दोनों लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में साथ में काम करते थे, वेयर ये कृष्णा जी जो है ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एंट्री लेवल स्टूडेंट्स और मेरा होता था उनको ग्रूमिंग करने का एंड फाइंडिंग कि वो मार्केटिंग के जॉब पे सुटेबल है या और कहीं पे सुटेबल है। तो हम लोग कॉलेज के इंजीनियर्स लेते थे। उसके बाद हमने कुछ अपनी फ्रेमवर्क बनाई और उसके बाद उनको जो उनको पसंद आता है वो जॉब पे हमने उनको डाला, उन्हीं की फीडबैक लेके और एक मेंटर का टीम डिफाइन करके। यहाँ नहीं कि कहीं पे भी फिट होता है वहां पे उनको फिट किया। उनको जो इंटरेस्ट आता है, जो हमको समझ में आता है हमारी स्किल से, उनको हमने स्किल्स दी, एक टेस्ट कंडक्ट करवाई और फिर उसके बाद उनको जो जॉब में दिया, तो उन जॉब में करने के बाद हमने ये रिजल्ट्स पाए कि जो जॉब उनको उनके इंटरेस्ट का दिया गया, तो वो उसमें बहुत अच्छे से वर्क करने लग गए। अब इससे क्या हुआ कि उनको जो जॉब का इनिशियल प्रेशर आ रहा था वो थोड़ा मिनिमाइज हुआ एंड इससे हमें पता लगा कि अगर आपका पैशन वही ड्राइव कर रहा है जो आप चाहते हो, जो आपकी स्किल्स है, आपका ब्रेन जिस हिसाब से सोचता है और उसी फील्ड में आपको जॉब दिया जाए, तो आपकी मोनोटोनी कम हो जाएगी। इससे ऑर्गेनाइजेशन को ये फायदा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को जो कैंडिडेट रहता है उससे मैक्सिमम निकलता है। तो इससे कंपनी भी ग्रो होती है, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव भी ग्रो होता है। तो ये सब चीजें सामने रख के हमने एक पर्सनैलिटी मैट्रिक्स करके ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की है। इस ऑर्गेनाइजेशन का एम है इनेबलिंग पीपल टू एक्सेल। अब पीपल जो व्हाट द पीपल थिंक्स, what they thinks in their domain they should excel, that is the main aim of the organization. अब इस टॉपिक के लिए हम लोगों को जो दिया है कि जॉब सर्च करना है, तो व्हाट एग्जैक्टली अ जॉब मीन्स, आज की डेट में अगर हम जॉब की डेफिनेशन को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो एक एम्प्लॉयमेंट सर्च मीन्स एक सोसाइटी में कंसीडर्ड होता है व्हेन यू एंटर इनटू द एज ऑफ से 20 22 और डिपेंड अपॉन द फैमिली कंडीशन। हमें ये बोला जाता है कि भाई अब आप कुछ काम करो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ या कुछ अर्निंग करो। अब ये अर्निंग का जो आ जाता है अर्निंग की, भाई अर्निंग क्यों करनी चाहिए, तो बिकॉज यू वांटेड टू सेटल इन योर लाइफ एंड यू वांटेड टू रन योर फैमिली। अब इसके लिए उस 25 एज पे आने तक के आपके पास बहुत सारी चीजें आ जाती है। आपके पास जो बकेट रहती है, बैगेज रहता है, वो रहता है एक का आपका स्कूलिंग का नॉलेज, एक आपके घर में आपको क्या सिखाया गया है वो आपने सीखा रहता है, तीसरा आपको कॉलेज ने क्या सिखाया ये रहता है आपके पास, और चौथा आपकी कम्युनिटी, आपका फ्रेंड सर्कल, इन लोगों ने आपको क्या सिखाया ये रहता है। तो हम इंडिया में अगर देखे जाए तो एक इसका फर्स्ट चेंज जो निकलता है, जो 10th के बाद निकलता है, जिसमें हमें डिसाइड करना होता है कि आपने आर्ट्स लेना है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है या व्हाटसोएवर। तो अब उसमें जिसने भी साइंस लिया या आर्ट लिया, उसकी तो बंद हो गया, ही विल नॉट थिंक अबाउट गोइंग फॉर द डॉक्टर।
अब उसको कितना भी अच्छा बोले कि आप वो आर्ट लेने के बाद क्या मैं डॉक्टर बनने जाऊंगा, तो वो नहीं बन पाएगा। तो दैट मीन्स 10th या अराउंड द एज ऑफ 8-16 तब हम लोगों का ये डिसीजन हो जाता है कि भाई मेरा बेटा तो अब डॉक्टर ही बनेगा या इंजीनियर बनेगा, व्हाटसोएवर। तो ये सब इंडियन सोसाइटीज और अपनी इस पे हम लोगों का इंक्लिनेशन रहता है कि हमें पहले से ही बता दिया जाता है कि आपको इस फील्ड में जाना है। उसके हिसाब से फिर स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन करते हैं, आईआईटीज के लिए ट्राई करते हैं, नीट के लिए ट्राई करते हैं, और उसके बाद दे गेट इनटू द एडमिशन टू देयर देयर रिस्पेक्टिव कॉलेजेस। अब जब कॉलेज की स्टडीज खत्म हो जाती है, तो इधर दे वांटेड टू गो फॉर द एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और अ बिजनेस। इसमें 3 चैनल्स चालू हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे पता चल जाता है कि अभी कोई भी कैंडिडेट अगर हम ले ले, तो वो पहले देखेगा कि मैं कहीं पे जॉब करूँ, कहीं एक्सपीरियंस गेन करूँ, एंड देन उस एक्सपीरियंस के ट्रांजैक्शन से मुझे कुछ पैसे मिले। Means that is the transactional value of your time you are devoting to your organization or a company. अब इसमें एक चीज ये हो जाती है कि एम्प्लॉयमेंट आप लेने जा रहे हो मार्केट में, तो व्हाट कुड बी द सैलरी यू एक्सपेक्ट। हर जगह की सैलरी, हर जॉब की सैलरीज डिफरेंट होती है। तो आपका जो पुराना बैगेज रहता है उसके हिसाब से आपकी सैलरीज डिफाइंड होती है। अब कहीं क्या हो जाता है, यू गेट मोर, क्योंकि उनकी नॉलेज अच्छी होती है, स्टडीज अच्छी होती है, दे पास आउट फ्रॉम द वेरी गुड कॉलेज, दे गेट द मोर सैलरीज। वेयर सम ऑफ द कैंडिडेट्स जो नॉर्मल कॉलेज से होते हैं उनको सैलरीज कम होती है। एक नॉर्मल रूटीन होता है एम्प्लॉयमेंट का। अब इसके बाद क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको जॉब सर्च करने की जो तरीके होते हैं, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे आज कि हम लोगों को कैसे करने हैं। तो कैन आई गेट एन आंसर्स फ्रॉम द ऑडियंस कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप दे डू आफ्टर दे कंप्लीट एन एनी प्रोफेशनल कोर्स टू फाइंड अ जॉब। व्हाट इज द फर्स्ट ऑफ फर्स्ट थिंग्स दे डू। से इफ आई वुड से कि एक बंदा है कि जिन्होंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की है, आईआईटीज से खड़गपुर ले लेता हूं मैं, या आईआईटी कोई भी ले लूं, तो आईआईटीज में मोस्टली तो जॉब कैंपस से मिल ही जाते हैं। अगर नहीं मिल रहा है, इफ दे डू नॉट गेट द जॉब फ्रॉम द कैंपस, व्हाट विल बी द फर्स्ट ऑफ फर्स्ट स्टेप दैट कैंडिडेट शुड डू। आई नीड अ पार्टिसिपेशन एंड आंसर्स फ्रॉम द ऑडियंस कि उन्होंने क्या करना चाहिए इस स्टेज में। कैन आई विल वेट फॉर 1 minute टू गेट द आंसर, एंड उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं फिर सेशन के लिए। यस, इन नास का हमें आंसर आया, मेक अ रिज्यूमे एंड क्रिएट अ प्रोफाइल इन naukri.com। एनी अदर? Yes, Abdul Manan, please unmute yourself and answer. Okay, Sophia, you can say. Yeah, we can obviously make our profile, and after that we can connect with our contacts. Like if we have anyone's number or if we are in connection with any senior members, so whether they are aware of any opportunities, or we can apply, if we can search in Google, or if we want internships, then we can go for internshala. That is a very good answer, Sophia. Perfectly all right. एनी अदर? और किसी को कुछ इन पे एडिशन करनी है? Yes, Zubair Rahman, you can unmute yourself and answer. ओके, सो अब व्हाट आई वुड डू कि मुझे जो आंसर्स मिले हैं इसमें, फर्स्ट आई से मेक अ रेज्यूमे, अप्लाई इन naukri.com एंड रेज एवरीथिंग। इसको मैं थोड़ा सा एक स्टेप पीछे लेके जाऊंगा। हम लोगों ने जो भी कॉलेज से जो पास आउट होते हैं, उन्होंने अपनी स्टडीज कंप्लीट की है, उन्होंने जाना है कि हमें क्या करना है लाइफ में, मुझे कौन सा डोमेन पे जॉब ढूंढनी है। तो व्हाट आई वुड से इन दिस केस, बिफोर गोइंग टू दैट स्टेप मेकिंग अ रेज्यूमे एंड अ प्रोफाइल, एक स्टेप पीछे जाके हमें a candidate, what I expect, right? What could be the 5 probable jobs that I would apply in future where I am entering into the job market? For example, अब मैं इसमें बीइंग आई एम एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, बेसिकली मेरे मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स इंजीनियर स्टूडेंट से ही रहते हैं।
तो एक इंजीनियर अगर पास आउट होता है कॉलेज से, फॉर एग्जाम्पल ही इज डूइंग हिज इंजीनियरिंग एंड से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो उसको 10 मिनट सोचना चाहिए, या एक दिन का टाइम ले ले या 1 वीक का टाइम ले ले, कि इंजीनियरिंग में किस किस डोमेन में जॉब रहते हैं, किस किस डोमेन में नौकरीज ऑफर होती है। सो आए मुझे इतना इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट व्हेन आई इंटरेक्ट विद पीपल और मैं कोच करता हूं उनसे, तो फर्स्ट वन कम्स एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिसमें एक कोडिंग और एनालिटिकल स्किल्स के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है। सेकंड होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का होता है। थर्ड वन आई वुड से अ सेल्स ऑफ अ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट। फोर्थ वन होता है अ कंप्लायंस ऑफ अ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट। फिफ्थ आ जाता है कि अ फैक्ट्रीज विच आर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल गुड्स, उनकी जो प्रोसेस होती है उसकी ऑटोमेशन और वर्किंग मॉड्यूल कैसे होता है, क्या हम इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम एज अ स्टूडेंट उसको रिटर्न, अगेन आई विल स्ट्रेस ऑन अ रिटर्न, आपको प्रॉपरली आपकी एक डॉक्यूमेंट या एक लैपटॉप में एक्सेल शीट रखनी चाहिए, जिसमें आपने लिखना चाहिए माय विजन बोर्ड। माय विजन बोर्ड मीन्स अगर आप 2022 में पास आउट हो रहे हो, तो आपको उस पे 5 लिखने हैं प्रोबेबल जॉब्स आई विल अटेम्प्ट, फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन। अब ये 5 जॉब्स आपने डिफाइन कर दिए, irrespective ऑफ थिंक कि आपको वहां पे जॉब मिले नहीं मिले, इफ यू आर टारगेटिंग अ गूगल एज एन एम्प्लॉयर कंपनी और टीसीएस व्हाटसोएवर, बट आप लिख लीजिए उसमें। इससे क्या होगा, आपको इसके लिखने के तो पैसे नहीं लगेंगे, बट आपका अलाइनमेंट आ जाएगा कि मुझे ये जॉब सर्च करनी है, रादर देन हंटिंग इनटू द मार्केट। सेकंड स्टेप, स्टेप नंबर 2, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो जॉब प्रोफाइल आप सर्च कर रहे हो उससे कनेक्टेड आपके सीवीज बने। आजकल हम लोग देखते हैं naukri.com हो गया या फिर इंडीड हो गया, व्हाट्सएवर जो भी साइट्स हो गई, दे गिव एन ऑप्शन टू हैव एन मल्टीपल सीवीज। अब आपने 5 जॉब प्रोफाइल्स बनाए हैं, 5 टारगेट जॉब्स बनाए हैं, तो करस्पॉन्डिंगली एटलीस्ट 2 सीवीज यू कैन मेक, and this in both the CVs you will highlight your key areas कि आप वो जॉब क्यों करना चाहते हो। आपको हाईलाइट इसलिए करना है कि आपकी प्रीवियस हिस्ट्री उस हिसाब से गई है, आपने उसमें स्टडीज की है, आपने उसने स्टडी, वन सेकंड देयर इज अ मैसेज। ओके, ओके आई विल नोट। स्टडीज कैसे की है उसके हिसाब से आपको उस प्रिपरेशन करनी है। अब इसके बाद जो फर्स्ट स्टेप आपकी अगर कंप्लीट हो चुकी है, तो आप सेकंड स्टेज में आ जाइए। सेकंड स्टेज पे आपके पास वर्ल्ड वाइड साइट्स है, लिंक्डइन हो गया, जितनी भी मैंने मेंशन भी की है इसमें, एंड वहां पे आपने जॉब के अपने सीवीज ये करने हैं। एक चीज ऐसी होती है कि सेकंड स्टेज जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। फर्स्ट वन इज आई विल कम्युनिकेट विथ माई ओन कॉन्टैक्ट्स, माई सीनियर्स, माई मेंटर्स, जो भी मेरे पहचान के हैं सब में, उनको मैं कम्युनिकेट करूंगा कि मुझे मैंने अपनी लिए ये 5 जॉब्स डिफाइन किए हैं, आप लोग मुझे इतने सालों से जानते हो, मुझे पाते हैं, तो उनके एक आप फर्स्ट हैंड फीडबैक ले लीजिए। फीडबैक में क्या होगा, 4 लोग आपको ये बोलेंगे कि नहीं आप ये जॉब पे ट्राई मत करो, इसमें स्कोप नहीं है, इसमें आपकी सैलरीज नहीं मिलेगी, बट आपका इनर इंस्टिंक्ट अगर ये कहता है कि मेरी ये स्किल्स है, तो आपको उसको रिथिंक करना चाहिए। सैलरीज जो होती है स्टार्टिंग लेवल्स में सैलरीज ज्यादा होती है, बट आप हॉरिजॉन अगर 20 साल का लेके चलते हो, और 20 साल की सैलरी स्टार्टिंग सैलरीज विद ग्रोथ आप कंप्यूट करते हो, कैलकुलेट करते हो, तो आपका इंटरेस्ट जो रहता है, जिसमें आपको मजा आता है काम करने में, ऑल्दो उसकी सैलरीज इनिशियली कम रही, बट हमारा ये स्टडीज कहता है कि लॉन्ग रन में दे गेट अ गुड बेनिफिट, और उससे उसको फायदा होता है। सो इनिशियली आई वुड से कि सैलरीज के ऊपर न जाते हुए स्किल्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देके हमने ये करना चाहिए। अब इसके बाद क्या होता है कि आई रीड दिस फ्रेज, जो हमेशा मीन्स दिस इज गोइंग, बहुत दिनों से ये आता है, हाउ कैन आई गेट एन एक्सपीरियंस अंटिल आई गेट अ जॉब दैट गिव्स मी एक्सपीरियंस।
मोस्टली कंपनीज में क्या होता है, वो बोलते हैं हमें एक्सपीरियंस चाहिए, एंड ये प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एनी कैंडिडेट को कि हमें उसका प्रायर एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन हम उसको अप्लाई करते हैं वो जॉब के लिए। अब ये चीज पे स्किल होती है कि हम ये चीज को कैसे एक्सप्लेन करें। अर्लियर डेज में क्या होता था कि सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था। आज की जनरेशन में, जो जनरेशन जी हम लोग फॉलो कर रहे हैं, उसमें सोशल मीडिया काफी एक्टिव है। आई विल शेयर अ प्लेटफॉर्म लिंक्डइन जो होता है, कि लिंक्डइन में आप अपना सीवी बना के जो भी जॉब पोर्टल, जो भी आप एक्सपेक्ट करते हो, उसके आपको उस जॉब में जो जो बंदे हैं उनसे आप कनेक्ट करके you can see how they are behaving, so how what is they are following, what they are doing, उससे मुझे कुछ सीखने मिल रहा है क्या, ये सब चीज करके आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो लिंक्डइन विद बी अनदर वे टू मेक अ प्रोफाइल ऑफ योर सेल्फ, एंड उसके बाद आप लिंक्डइन में जो जो आप जिस कैंडिडेट्स को फॉलो कर रहे हैं उसके हिसाब से आप उसके आगे जा सकते हैं। सो दैट इज अनदर एरिया वेयर वी कैन इंक्रीज आवर रीच फ्रॉम द सोशल मीडिया हैंडलर, और उसके बाद लिंक्डइन जो है आपको सपोर्ट करता है। तीसरा, अब मैं थर्ड स्लाइड पे आ गया हूँ, एक्सप्लोर ऑप्शंस फॉर योर टारगेट जॉब, दैट आई एक्सप्लेन्ड इन द फर्स्ट वे। सेकंड, इंटरनेट जॉब साइट्स एंड रेफरल डायरेक्ट। मोस्टली कंपनीज रेफरल कैंडिडेट्स को प्रेफर करती है। तो अगर फॉर एग्जांपल आई वुड से, अगर कहीं से आपको पता चला है कि कहीं पे आपका सीवी जाना है, फॉर एग्जांपल आई वुड से अ कंपनी कॉल्ड कॉग्निजेंट और टीसीएस, तो अगर आपके वहां पे कोई पहचान के है, तो यू कैन रिक्वेस्ट देम, कैन यू रेफर योर कैंडिडेचर टू द पैनल। सो एटलीस्ट इससे क्या हो जाता है, एक एज आ जाती है आपके सीवी सिलेक्शन में। जॉब जो मिलती है वो तो आपको सिलेक्शन, आपकी स्किल्स क्राइटेरिया और जॉब की रिक्वायरमेंट्स क्या है उसी पे मिलती है, बट इससे एक स्टेप आपका जॉब सर्च का जर्नी जो है वो अप हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि लिंक्डइन वगैरह पे कोई हमारे से कनेक्टेड है, क्या मैं उनसे रेफरल के लिए पूछूं। इसमें क्या हो जाता है कि जो भी लिंक्डइन पे कनेक्टेड लोग होते हैं, they are professionals, sometimes they get the time, sometimes they do not get the time, and किसी को ये रेफर करना ठीक लगता है, किसी को नहीं करता है। तो if you wanted to associate or talk someone, ask for his referral, you can directly write for the job seeker, entry job seeker। अब इसमें क्या हो जाता है कि अगर वो, उसको अगर आपको रेफर करना है तो ही विल रेफर यू, अदरवाइज देर इज नो हार्म। इसमें आपका ऐसा कोई लॉस तो नहीं है कि वो आपको रेफर ना करे। सो बेटर आई वुड से कि लिंक्डइन पे रेफरल ढूंढना कुड बी एन अनदर स्टेप इन अ जॉब सर्च मॉड्यूल दैट यू आर गोइंग ऑन। इसके बाद मैं अपनी आगे की स्लाइड पे जाऊंगा, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू गेट अ जॉब। ये बेसिकली सबको पता है, इसमें कुछ नई बोलने की बात नहीं है कि सीवी चाहिए, इंटरव्यू प्रोसेस होता है, नेटवर्किंग से हमारे पास जॉब आते हैं, रेफरल होते हैं। अब इसमें मैं रेफरल और कॉन्फिडेंस के बीच में एक 3-4 मिनट स्पेंड करूंगा कि जब भी हमारे पास इंटरव्यू कॉल्स आते हैं, तो कोई कैंडिडेट्स होते हैं उनके पास मल्टीपल इंटरव्यूज आते हैं, और किसी के पास हार्डली कभी कोई इंटरव्यू का कॉल आता है। तो आप जो भी जॉब के लिए जा रहे हो, सीवी आपने ऑलरेडी दिया है, इंटरव्यू का प्रोसेस हुआ है, इंटरव्यू के प्रोसेस के लिए आपने नेटवर्किंग का टूल इस्तेमाल करके वो जॉब के लिए प्रॉपर प्रॉपर इंक्वायरी और स्टडी अपनी कंप्लीट की है। जब इंटरव्यू प्रोसेस में आप जाते हो, उस टाइम पे आपको, आप जो जॉब के लिए अप्लाई किए हो उसका पूरा डोमेन नॉलेज होना जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज आगे के इसमें कंडक्ट किए हैं फॉर द ऑर्गेनाइजेशन विच आई वर्क, एंड व्हेन आई आस्क्ड देम हैव यू विजिटेड द वेबसाइट ऑफ आवर कंपनी, they clearly said no। means I rated them for the preparation for the job as a 1 or 0 in the scale of 5।
दैट मीन्स जो भी कंपनीज आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर रही है वो आपको 2 या 3 दिन का मिनिमम टाइम तो देती है. इट इज ओके टू गो थ्रू द कंपनी वेबसाइट्स अगर है तो. अगर नहीं है तो यू इंक्वायर फ्रॉम समवन कि ये कंपनीज क्या क्या काम करती है, क्या क्या काम करती है. एंड उसके बाद आपके पास एक बेसिक इंफॉर्मेशन होगी अबाउट दैट कंपनी. सेकंड, आप किस डोमेन में वो कंपनी में जॉब करना चाहते हो. फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांटेड टू गो एज ए डेटा एनालिस्ट, आपको पता होना चाहिए कि उस कंपनी में डेटा एनालिस्ट की टीम कितनी है, और दे आर स्टार्टिंग अप विद द डेटा एनालिस्ट डिपार्टमेंट. इफ द डेटा एनालिस्ट डिपार्टमेंट वो अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, so this will be a first level. I mean the company also do not have an experience and there will be the big hiring. So expectations out of your candidature will be higher in this case. ट्रेनिंग जो मिलेगी आपको इसमें जॉब करने की, वो ट्रेनिंग एक डिफरेंट लेवल की होगी. अपार्ट फ्रॉम दिस क्या होता है कि आप जॉब जब लेके जाते हो उसके बाद आपका एक ट्रेनिंग फेज डिफाइन होता है एचआर से. एचआर का ट्रेनिंग फेज उस कंपनी में है या नहीं, ये भी आपको इनिशियली चेक करना चाहिए. अगर वो जॉब आपको बाहर से कोई ट्रेनिंग अगर आप कर लेते हो और वो जॉब आप जो करने वाले हो उसमें उसकी एज मिलती है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि कोई अकाउंटिंग का जॉब परस्यू करना चाहता है और उसको एक्सेल में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेना है, तो दे कैन गो फॉर द एडवांस एक्सेल कोर्स बिफोर एंटरिंग इनटू द जॉब. सो दैट क्या होता है, जो रिपोर्ट्स रन करनी होती है और जो स्टडीज करना होता है, प्रेजेंटेशन बनानी होती है, तो आप जॉब में जब चले जाओगे उसके बाद आप ये काम करने आपको दिया जाएगा. तो ये काम करने के लिए आपको जो टाइम लगेगा व्हेन यू इनटू द जॉब विल बी हायर. अगर आप पहले ही उस डोमेन की उस चीज की नॉलेज ले लेते हैं तो आपको वो काम करने के लिए टाइम फ्रेम जो है वो कम लगेगी. तो इस तरीके से हमको सोच के आगे जॉब के डोमेन के हिसाब से और अपनी स्किल के हिसाब से जॉब के लिए वर्क प्रिपेयर होना चाहिए. Any question about till this point? I would like to answer the question because I wanted to take a 2 minutes break. I have a question about from Musharraf Jahan. Can I get a job in your company? Our company is based in Mumbai, Navi Mumbai, and we are a startup company, and we hire a person on directly, not on the payrolls but based on the jobs. So definitely if anything comes out, I'll reach out to Musharraf Jahan, and you can visit and share the CV to the personality matrix team. So जब भी कुछ चीज ऐसे आती है तो we will get back to you based on your portfolios and how you works, how it suits. Can we go further? Yes, sir, please. And dear candidates, you can keep these questions in the Q&A box. Inshallah, sir Also. will answer all of these at the end of the session. Okay, please first let the session be completed. Thank you. Okay, now I'm going to the another slide which says what is required to get a job. अब इसमें कहने को इसमें कहने के लिए तो बहुत कुछ होता है कि व्हाट इज रिक्वायर्ड टू गेट अ जॉब, बट इसके आंसर्स हमेशा डॉटेड लाइन पे आते हैं. एक तो कोई भी कंपनीज आपको हायर करती है, इसमें अगर मैं निकालूं प्रोसेस, तो एक तो पहले आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपने क्या क्या पढ़ा है, आपको क्या क्या आता है, ये आपका सीवी बता देता है. उसके बाद एक इंटरव्यू का प्रोसेस होता है जिसमें कोई कंपनीज एक साइकोमेट्री टेस्ट लेती है, और कोई कंपनीज आपको ग्रुप डिस्कशन करवाती है, कोई कंपनीज आपको इंटरव्यूज के लिए बुलाती है. इंटरव्यूज में भी अगर मैं ऑन एन एवरेज टाइम स्पैन कंसीडर करूं तो एचआर का इंटरव्यू आपको एक 15 मिनट्स का होता है, 15-20 मिनट्स का. उसके बाद आपको जो मेन डोमेन में काम करना है उसका इंटरव्यूज 35 मिनट्स का होता है, 35-40 मिनट्स का. और उसके बाद एक सैलरी डिस्कशन की होती है. तो ये टोटल जर्नी जो होता है, इफ आई कैलकुलेट अराउंड, इट विल बी नॉट मोर देन 3 आवर्स अ जर्नी.
तो एक आपने 10-15 साल की एक पढ़ाई की है, 4 साल का एक 4-5 साल का एक प्रोफेशनल कोर्स किया है और एक 3 घंटे की आपने इंटरव्यू दी है। अब ये इतनी पूरी जर्नी के बाद आपको एक जॉब ऑफर होती है, जो आपको 5-6 साल आगे के करियर के लिए हेल्प करती है। अब इसमें जो 3 घंटे का जो इंटरव्यू होता है, उसमें आपकी चीज़ें जो चेक किए जाती है, वह है आपका एटीट्यूड, बिकॉज़ जो जॉब जो परफ़ॉर्म करनी होती है, उसमें आपको टीम के साथ परफॉर्म करनी होती है। एक इंडिविजुअल जॉब नहीं होती है वो। टीम के साथ परफॉर्म करने का मीनिंग ये होता है कि आप जो भी जॉब में जाते हो, उसके बाद आपको आपके अड़ोस-पड़ोस के जो कलीग्स रहते हैं आपके, आपको उनसे इंटरैक्ट करना होता है। दैट इज़ फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है कि आपको आपके बॉस जो होते हैं, उनकी इंस्ट्रक्शंस को अंडरस्टैंड करके टू गेट इट इन अ बेटर वे, बिकॉज़ आपको जब हायर किया जाता है, तो उसमें ये नहीं कि बॉस का लाइफ मिजरेबल बनाने के लिए हायर किया जाता है। यू हैव बीन हायर्ड टू सपोर्ट टू द कंपनी फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। तो ये जो एटीट्यूड और माइंडसेट जो होता है, ये उस 3 आवर्स के जर्नी में चेक किया जाता है। उसके बाद जो उस कंपनीज का जो सैलरी एक्सपेक्टेशंस होता है, दैट कम्स इनटू द पिक्चर। अब इसमें क्या हो जाता है, 3 घंटे की जर्नी में आप 100% परफॉर्म करते हो, आप उसके लिए प्रिपेयर होते हो, आप क्वेश्चंस के आंसर्स लर्न करते हो कि अगर मुझे ये सवाल किया तो मैं ये जवाब दूंगा, मैंने ये पूछा तो मैंने ये जवाब दिया और मैंने बहुत अच्छे से जवाब दिया। बट एक्चुअल में जब व्हेन इट कम्स टू द परफॉर्म अ जॉब, कभी क्या हो जाता है कि जिस जिस बंदे ने, जिस एचआर वाले ने या जिस मार्केटिंग वाले ने आपका इंटरव्यू लिया है, उसको इसमें मिसमैच मिल जाती है, जिसको हम बोलते हैं फिटमेंट। फिटमेंट मतलब उसने ये कंसीडर किया कि मैं आपको सेल्स के पोजीशन के लिए हायर करूंगा, बट आने के बाद पता चल जाता है बंदे को, क्या इसने इंटरव्यू में तो बहुत अच्छे से बात की थी मेरे से, बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया था खुद को, अब मैं इसको कस्टमर के सामने एक प्रेजेंटेशन देने बोल रहा हूँ, तो भाईजान का कॉन्फिडेंस लूज हो जा रहा है, भाईजान कुछ बोल ही नहीं पा रहे। तो उनको थोड़ा सा टफ हो जाता है वो सिचुएशन हैंडल करना। And then this tough situation is difficult for a boss to express to the person you get hired. तो एक तो क्या हो जाता है उसमें, ये चीजें आपको डांट के समझाई जाएगी, आप पे प्रेशर किया जाता है या आपको जो जॉब दिया है वो आप परफॉर्म कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपको बार बार ये बताया जाएगा कि आप उसके इसमें उस चीज पे परफॉर्म नहीं कर रहे हो। तो ये चीज हमने समझ लेनी चाहिए कि जो जॉब पे हम जा रहे हैं, nobody will offer a free salary to anyone. That is rest assured. There will always be a work for you. If you do not find a work once you get hired, you will have to find an alternative work जो आपको वही कंपनी में और क्या क्या काम हो रहा है। तो ये फिटमेंट वाला चीज है, वो एक इंपॉर्टेंट होता है। देन थर्ड वन आई विल से अ स्किल टू अलाइन विथ अ टीम एंड कोलैबोरेटिव अप्रोच। आपको 10 लोगों के साथ वहां पे बात करनी है। तो मैंने भी अपने मैन व्हेन आई हायर्ड अ जूनियर्स, आई हायर्ड अ टीम, सो उसमें क्या हो जाता है, जब आई हर्ड सम आंसर्स कि मैं उस बंदे से बात नहीं करूंगा, आई मीन आई विल नॉट टॉक विद दैट गाय जिससे आपको काम निकालना है। एंड देन दिस उससे क्या हो जाता है कि अगले बंदे का मेरे से बात करने का रवैया ठीक नहीं है, आई मीन ही इज टू हार्श while he is speaking, he talks with me। तो ये सब क्वेश्चंस आ जाते हैं when you actually enters into the job market। आई एम श्योर जो लोग जॉब कर रहे होंगे तो वो इससे रेजोनेट कर पा रहे होंगे या कोरिलेट कर पा रहे होंगे। अब ये सब चीजें जो है, ये सब चीजें हमें कहीं बुक में या कहीं पे करिकुलम में सिखाई नहीं जाती। ये चीजें जो होती है, ये कम्युनिटी से हमको सीखनी मिलती है और हम जो एनवायरनमेंट में रहते हैं वो सब चीजों से सीखनी मिलती है। तो ये सब चीजों को हम अपग्रेड कैसे करें, हम अपने आप को चेंज कैसे करें, फिट कैसे करें, ये सब चीजें हमको सीख के जॉब मार्केट में एंटर करके अपने हमें रेडी करना चाहिए। प्रेजेंटेशन स्किल्स जो होती है, प्रेजेंटेशन स्किल्स पे आजकल हमें बहुत ध्यान दिया जाता है कि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो। प्रेजेंटेशन से मुराद ये होती है कि आपको कोई भी जॉब में आप जाते हो तो आपको डेली कोई प्रेजेंटेशन देनी वेनी नहीं होती है। प्रेजेंटेशन जो होती है वो समटाइम्स वंस इन अ ब्लू मून से मंथली, बायो मंथली और
वेयर डिपेंड आप कौन से जॉब डोमेन पे अप्लाई होते हो, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेशंस होती है क्लैरिटी टू द थॉट्स। मतलब आपको जो बोलना है, सपोज मुझे मेरे बॉस को ये कम्युनिकेट करना है कि आज ये काम मेरे से नहीं होगा। इफ द बॉस सेज कि मुझे ये आज के आज चाहिए, और आपको ये कम्युनिकेट करना है कि आज मुझसे ये नहीं होगा, तो समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट फॉर अ कैंडिडेट टू कम्युनिकेट टू द बॉस कि ये मेरे से आज नहीं हो पाएगा। I have seen a candidate they directly say, मैं ये आज नहीं करूंगी. Sometimes it sounds rude for the boss, तो then he will say नहीं मुझे तो आज के आज ही चाहिए. There are always ways to communicate how this will take more time. तो अगर मुझे इस चीज को बाइफरकेट करके बताना है, तो आपको फर्स्ट ये बताना होगा कि जो टास्क आपको असाइन किया है रियल टाइम में उसको टाइम कितना लगना है। इफ इट टेक्स अराउंड 5 hours of your time and you do not have 5 hours and you are busy on another things, you should clearly and politely communicate and ask priority from your boss कि ये मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो ये चीजें जो है ये सिखाई, ये नर्चर जो होती है ये फैमिलीज और हम लोगों को जिस एनवायरनमेंट में हम बड़े हैं उससे वो नर्चर होती है। कॉलेजेस में भी ये चीजें नर्चर की जा रही है, बट दिस इज नाउ एन इम्पोर्टेंट टूल फॉर जॉब विच वी फोरसी इन फोर्थकमिंग इंडस्ट्रीज लेवल्स। अब नॉलेज की जो बात है, नॉलेज कैन बी इंक्रीज बिकॉज अभी आज की सिचुएशन में हम जो जोन में है, नॉलेज गेटिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम। नॉलेज आपको हर जगह से मिल जाती है एंड टाइम टू गेट अ नॉलेज इज वेरी मच शॉर्ट ऑन नाउअडेज। पहले जैसे होता था कि कोई चीज अगर मुझे बताई गई तो मुझे 10 बुक्स पढ़नी पड़ेगी और उसमें से फिर निकालना होगा। नाउअडेज इट इज वेरी इजी। Google is also supporting and there are so many domains that you can reach out to the peoples, और आप अपनी नॉलेज को रिगार्डिंग द डोमेन बढ़ा सकते हो। सैलरी वाला जो पार्ट है ये मैं इस पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं कर पाऊंगा, बट आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग कि अगर आप एंट्री लेवल जॉब पे एंट्री लेवल जॉब के लिए अप्लाई करते हो एंड देन सैलरीज जो है जो आपके पियर्स और उसको मिलती है और जो भी डोमेन्स को मिलती है, दैट इज हिज ओन प्रोवोगेटिव कि आपको क्या सैलरीज चाहिए और कैसे आपको आगे जाना है। बट अगेन द सेम थिंग कि आपके एक्सपेंसेस कहते हैं, सिटी कैसी है, कहाँ पे वर्क लाइफ कैसे है, डिस्टेंस टू ट्रैवल ऑफिस कैसे है। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन मोड पे ही चल रहा है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर वर्किंग फ्रॉम देयर होम्स। बट ये सब चीजें सैलरीज का पार्ट होती है। तो सैलरी पे मैं आपको एक सैलरी में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको सैलरी का चीज जो है कि आपके जो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस होने के बाद इफ यू सी कि आप उसमें से कुछ सेविंग्स कर पाते हो, सो दैट इज अगेन फाइन। इफ यू आर डूइंग इट फॉर द ब्रेक इवन एंड यू आर हंग्री फॉर अ जॉब, क्या बस अब मुझे चाहिए ही चाहिए, तो यू कैन गो फॉर एंड कॉम्प्रोमाइज फॉर इनिशियल जॉब फॉर ऑन अ सैलरी फ्रंट। बट इफ आर श्योर अबाउट योर स्किल्स कि नहीं मुझे इससे ज्यादा सैलरी की जॉब मिल सकती है, तो इट इज अगेन अ वेवलेंथ कि आप उसको कैसे रीड कर पाते हो। हेलो, Yes, sir. इज माय ऑडियो क्लियर? बिकॉज आई एम सेंडिंग फाइंडिंग सम नॉइज इन बिटवीन। No, 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 sir. इट्स Your एक्चुअली audio क्लियर। is clear. Alhamdulillah. ओके। अब वंस यू गेट इनटू द सैलरीज, देन परफॉर्मेंस वाली चीजें आती है कि आप अपने जॉब से परफॉर्म कैसे कर रहे हो। And now this is not the forum for the job change, because again we handle the how a job change can happen. तो जॉब चेंज की सिचुएशन जो होती है कि अगर आप 1 ईयर और 6 मंथ्स के एक्सपीरियंस में हो, तो उसके बाद आपको जॉब चेंज को कैसे देखना चाहिए। क्योंकि क्या हो जाता है जनरली, फॉर दिस जनरेशन आई हैव सीन द प्रोफेशनल, द जॉब चेंजेस इज लाइक, आई हर्ड पीपल सेइंग कि मैं एक कंपनी में गया, मैं 1 महीने काम किया और मुझे तो वो समझ ही नहीं आया मैंने क्या करना है, और मेरे पास दूसरी जॉब तो थी नहीं, मैंने छोड़ दी। तो दैट समथिंग आई शुड से शुड बी अवॉइडेड, बिकॉज एक एक 2-3 महीने तो कंपनी आपको देखते रहती है कि आप कैसे काम कर, कैसे आते हो, क्या आते हो, और देन दे डिसाइड्स कि वेयर दिस कैंडिडेट विल फिट इनटू द जॉब।
sometimes क्या होता है कि when the candidates get recruited from the campus, they recruited in the bunch, like say 100 or 60 candidates एक job के लिए ले लिए, एक कंपनी ने हायर कर ली 40-50 कैंडिडेट्स, बट while giving into the real domain jobs उनके पास प्रिपरेशन नहीं रहती है कि ये 60 लोगों को कुछ वो काम दे दे। तो उसमें से आई वुड से 40-45 जो बच्चे रहते हैं उनको कोई डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया जाता है, और 15 to 10 जो रहते हैं दैट हैज बीन केप्ट एज अ बैकअप। बट जो ये बैकअप वाले रहते हैं उन पे सब लोगों की नजर रहती है। उनको प्रेशर जो रहता है वो दोनों टाइप से आ जाता है, यार मेरे पास तो कुछ काम नहीं है, मैं दिन भर ऑफिस में आके टाइम पास ही कर रहा हूँ, एंड देन सम दे से कि अब इस पे से मैं चेंज एक्सपेक्ट करूं या क्या करूं। सो ये सब चीजें एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहती है जो एंट्री लेवल जॉब में है। ये चीजें जो है कंपनीज लेवल अपने हिसाब से हैंडल करती है, बट इसमें जो मैंने स्टूडेंट्स वगैरह से ये किया है, इमीडिएटली विद इन 1.5 मंथ्स दे गो फॉर फाइंडिंग एन अनदर जॉब। सो अनदर जॉब में जाने के बाद भी उनको वापस सेम जोन पे आना पड़ता है कि वापस सेम सिचुएशन, बबल क्रिएट हो जाता है। तो बेटर एटलीस्ट मिनिमम 6 मंथ्स का आप कंसीडर करें एंड देन डिसाइड फॉर अ जॉब चेंज। तो ये एक जॉब के रिलेटेड चीजें हो जा कंसीडर होती है चीजें। 1 सेकंड। Okay, now again, one more point I would like to talk in this forum about handling a rejections. Abhi, on an approximate, I have taken this survey as well. एक जो बहुत ही अच्छा परफॉर्मर है उनको तो कैंपस से जॉब मिल जाती है। एक मिडिल लेवल का जो कैंडिडेट होता है, हाउ मच टाइम ही गेट्स रिजेक्टेड टू गेट हिज फर्स्ट जॉब। आई वुड लाइक टू पार्टिसिपेट कि कोई मुझे आंसर्स करे कि मिनिमम कितने रिजेक्शंस होते हैं एक फर्स्ट जॉब लेने के लिए। बिकॉज आई बिलोंग टू अ सिटी ऑफ मुंबई, तो यहाँ पे एटलीस्ट कुछ ना कुछ जॉब तो मिल ही जाती है। बट व्हेन आई फोकस मोर ऑन अ टीयर 2 सिटीज, वहां पे इनिशियली तो टफ हो जाता है जॉब लेना, बिकॉज क्योंकि वहां पे अपॉर्चुनिटीज कम होती है। तो कैन आई हैव आंसर्स इन अ चैट बॉक्स की कितने होते हैं? से एक बार एक एक बंदे से मैं मिला था, ही वाज सेइंग इंटरव्यू लेते टाइम पे कि आपकी ये कितनी बार आप इंटरव्यू दे रहे हो। ही वाज सेइंग मी अराउंड 9th इंटरव्यू आई एम अटेम्प्टिंग। So then I asked clearly him, what were the 9 companies that you are not hired? So I will answer about on this. तो एक बार मुझे पता चले कि कितने हो सकते हैं। अब्दुल मन्नान इज सेइंग 3। तो आप 3 इंटरव्यू देने के बाद चौथे में आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। दैट इज वेल अंडरस्टूड, वेरी गुड। और किसी को कोई आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं? क्योंकि ये जो जर्नी है जॉब सर्च का, आई एम श्योर एवरीवन, एवरी ह्यूमन बीइंग, अगर कोई सही में बहुत बड़े बिजनेस फैमिली से है तो उनको अगर मैं छोड़ दूं तो ये जर्नी हर किसी को ट्रैवल करना होता है। इवन मार्क जुकरबर्ग हैज ट्रैवल्ड दिस जर्नी, एंड स्टीव जॉब्स आल्सो ट्रैवल्ड दिस जर्नी। सो ऐसे नहीं होता है। सो एक अब्दुल मनन के ही हमें आंसर आए हैं, दैट इज 3 करके। बट एक स्टडी शोज कि एक टीयर 2 सिटीज के कैंडिडेट्स को ऑलमोस्ट 9 to 10 टाइम्स रिजेक्शन फेस करनी पड़ती है, एंड दिस नंबर इटसेल्फ इज वेरी हाई। जो कहा जाता है कि अगर कोई बंदा आपको 9 बार रिजेक्ट कर दे तो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल की, आई मीन आई वुड से कि एक जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अटेम्प्टिंग फॉर द फर्स्ट जॉब जो होता है, एंड व्हेन ही गोज फॉर द 9th जॉब, तो उसकी कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत डिटोरिएट हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस एक सोसाइटी का भी प्रेशर होता है, यार तेरे को तो कोई लेता ही नहीं है, कमी तेरी में ही है, बाकी सबको नौकरी मिल रही है, तेरे को ही नहीं मिल रही। ये सब क्वेश्चंस उसको फेस करने होते हैं। तो ये जो जर्नी होता है, आई कैन रिलेट टू द कैंडिडेट्स की ये जो फेज होता है जिसमें उनको ओवरकम करके निकलना है, इस जर्नी को मेंटली बहुत स्ट्रांगली परस्यू करना होता है, because everybody is expected some outcome from you, and you will get a 9 number of suggestion, 100 number of suggestion। आपको कोई भी बोल देगा, अरे यार मेरा यहाँ पे पहचान का, यू अप्लाई फॉर दैट। तो ये सब चीजें सामने आ जाती है। तो हैंडलिंग रिजेक्शंस जो होता है, इससे नंबर 1 चीज जो आती है वो आती है फ्रस्ट्रेशन।
अब ये फ्रस्ट्रेशन को कैसे ओवरकम करना है ये मैं आगे बताऊंगा। दूसरी बात यह होती है कि आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो लेवल पे आ जाती है। तीसरा, आप अगेन इफ यू अटेम्प्ट फॉर द सेम, तो व्हेन यू गो फॉर द सेकंड इंटरव्यू, जो आपका फर्स्ट टाइम का जो इंथू रहता है, उतना परफॉर्मेंस आप नहीं दे पाते हो, तो ये ग्राफ जो है वो धीरे धीरे नीचे हो जाते हैं। तो आप खुद को दोष देना चालू कर देते हैं कि भाई यार अब मुझसे टफ जा रहा है ये चीजें हैंडल करना। तो नाउ टू ओवरकम दिस सिचुएशन, फर्स्ट तो आप जैसे इफ आई वुड रिलेट दिस, आपने एक एक्सेल शीट बनानी चाहिए या कोई भी डायरी बनानी चाहिए। आप जो भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, लोकेशन, जॉब डोमेन, जो भी है, आपने सीवी दिया, कौन सी डेट को दिया, क्या दिया, ये सब उस पे 4 कॉलम आप ड्रॉ कर लो। आप वहां पे जाने के बाद, इंटरव्यू देने के बाद, आप जो डेट थी, डेट लिखो या पीरियड लिखो, लिखो कि सिलेक्टेड, नॉट सिलेक्टेड, सिलेक्टेड, फेयर इनफ, नॉट सिलेक्टेड। आप वहां पे सामने से लिखो कि मैं मुझे ऐसे क्या हुआ कि मैं वहां सिलेक्ट नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ही रिजेक्ट किया, सैलरी कम थी, फेयर इनफ, आप रिजेक्ट कर सकते हो ऑफर। सेकंड, जॉब मेरे लिए सूट नहीं था। थर्ड इनफ, कि मेरा कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हुआ। फोर्थ इनफ, कि बीइंग अ डिफरेंट कैंडिडेट फ्रॉम द फार लोकेशन, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फोर्थ में भी कि मेरे को डोमेन नॉलेज ही नहीं थी वो जॉब की। फिफ्थ में भी मैं टाइम पास करने ही गया था इंटरव्यू के लिए, मेरे को तो जॉब चाहिए ही नहीं थी। देयर में बी एन नंबर ऑफ रीजंस, बट इफ यू अटेम्प्टेड एन इंटरव्यू, यू मस्ट हैव आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि व्हाट वाज द रीजन मैं वहां पे नहीं सिलेक्ट हुआ। सेकंड, उसके बाद अगर आप सीरियस हो जॉब सर्चिंग के लिए, तो आप वहां से एक लर्निंग निकालोगे कि क्या मैंने सीखा इस इंटरव्यू से। ये इंटरव्यू से मैंने सीखा कि मेरा जो स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, वो मेरा ठीक नहीं था, तो मैं उस पर वर्क करूंगा। सेकंड पॉइंट ये था कि जो सब्जेक्ट की डोमेन नॉलेज एक्सपेक्टेड थी, वो मेरे पास थी नहीं, मैं फंबल कर गया 2 क्वेश्चंस पे, वो एक पार्ट होगी। थर्ड थर्ड पार्ट ये निकल के आई कि जो कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया, उसका अंदर कोई पहचान का था, उसने उसको रेफर किया करके सिलेक्ट हुआ। नेक्स्ट टाइम मैं कोई इंटरव्यू देने जाऊंगा तो मैं पूरी जी जान लगा लूंगा कि मेरे कोई पहचान का उस कंपनी में निकलता है या नहीं। तो दे जो जिस्ट होती है, जो एक किलर इंस्टिंक्ट होती है जॉब ढूंढने की, वो चीजें इसमें वर्क होती है। तो एक रिवर्क वाला एक फेज आता है बाद में। तो रिवर्क वाले फेज में क्या करना है कि आपको वापस सेम टेम्पो, सेम कॉन्फिडेंस रखना है और वापस इंटरव्यू के लिए जाना है। अब ये सब चीजें हमको हैंडल करनी होती है। अब आई थिंक आई विल बी, वन सेकंड, आई विल सी हाउ मेनी स्लाइड्स आई हैव। Now this will be the my last slide, and I will be closing a session for the what I would say question answers. एक यहाँ पे quote है which I like very much. Everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it's stupid. हम लोगों का क्या होता है अभी जो जॉब मार्केट में फेज में होता है, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आपकी टारगेट जॉब जो है वो क्लियर होनी चाहिए, क्लैरिटी फॉर द जॉब यू वांटेड टू अटेम्प्ट इट। इवन दो आपका लर्निंग करो, जर्नी टू गेट अ जॉब लंबा हो, बट आगे वो आपको बहुत फायदा देता है। हालांकि ऐसे ना हो कि आज मैं ये जॉब पे जा रहा हूं, अभी तो ये जॉब से मैं बोर हो गया, आई विल गो विद द अनदर जॉब। तो अगर ऐसे जर्नी हम करते हैं तो इट इज अ शॉर्ट टर्म जर्नी, बट इन द बोथ द केसेस मनी इज इन्वॉल्व। आप दोनों जगह पे आपको सैलरीज और स्किल्स के हिसाब से ही आपका लाइफ प्लान होता है। तो अगर कोई बंदा आज की डेट में प्रोडक्शन लेवल पे जॉब करता है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही डेवलप्ड अ स्किल्स टू डू अ गुड जॉब इन द मार्केटिंग, देन इन दैट केस ही कैन गो एंड स्विच, he will find and he will be the best performer in that domain. So for the starting level you must have a clarity for the job and where you are where you are good at. तो ये अपनी अपनी चीजें अपने आप को पता रहती है कि मैं किस चीज में अच्छा हूँ, रादर देन फॉर द जॉब। वो जॉब के लिए आपको चेंज करने से अच्छा है आप अपनी स्किल के हिसाब से अपनी जॉब मार्केट को आगे देखें। आई थिंक दैट इज डन फॉर मी। Thank you. I would like to thank AMP team. There were the another slides, but that were for the interview selections की process की थी, that I do not want to take into this session. I would like to complete my session over here.
आयशा मैम, अगर कोई क्वेश्चंस है तो हम लोग अटेम्प्ट करते हैं and we will support the participants with their journey of job searching. Inshallah, sir. The first question is from Ashraf Al Hassan Majumdar itself, that what if I am a student in grade first year and want to support my family? What should I do? Ashraf, okay, it's a very good question. I assume कि आप इसमें मुझे ये पूछना चाह रहे हो कि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो और आप अपनी फैमिली को कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो and you do want to do something so that a revenue model can be generated. That's what I understood from this question. तो इसमें ये होता है कि पहले इनिशियल डेज में ये थोड़ा टफ था, बट नाउ इट इज वेरी गुड। तो इसमें आपको ये पता करना चाहिए कि वेयर यू आर गुड एट, अगर आप कौन सी चीजों में अच्छे हो। एक इंटर्नशाला करके है जो आपको एक डोमेन इंटर्न्स करके प्रोवाइड करती है एंड समवेयर दे गेट पेड। अदरवाइज ऑल्सो यू कैन फाइंड यूर सेल्फ कि आपकी स्किल मुझे नहीं पता आप किस तरीके से जनरेट करना चाहते हो। पार्ट टाइम जॉब्स इज ऑल्सो एन अनदर ऑप्शंस। एंड देन अगर आप सही में रिवेन्यू ही जनरेट करने का मॉडल है तो देर आर सो मेनी वेज दैट यू कैन जनरेट फ्रॉम द रिवेन्यू एंड सपोर्ट योर फैमिली। इसका हर एक आपकी सिटी में क्या है, बिकॉज आप अगर स्टडी कर रहे हो तो आपको आपकी स्टडीज भी अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो आपको कोई चीज आपकी स्लीप कॉम्प्रोमाइज करनी होगी। आप अगर 8 घंटे सोते हो तो 3 घंटे कम सो के आपको ये करना होगा। सो इट इज अ कोरिलेशन बिटवीन हाउ यू वांटेड टू डू इट। ये सब चीजें उस प्लेटफॉर्म पे आके वर्क होती है। बट अगेन आई वुड से इफ यू रियली वांट टू गो फाइंड एन इंटर्न्स पोजीशंस दैट मोस्टली अवेलेबल। इंटर्नशाला एक साइट से अगर आप गूगल कर ले तो आपको और 3-4 साइट्स ऐसे मिल जाएगी कि जो इंटर्न्स करते हैं और कोई बैक ऑफिस के भी प्रोजेक्ट हायर करते हैं जिसमें वो पेड करते हैं। जो भी पीरियड में आप सपोज 8 डेज देते हो या 9 डेज देते हो उस काम के लिए, तो हिसाब से उसको आपको कॉम्पेंसेट किया जाता है। I hope I answered your question. If you wanted to have furthermore, and you can type it again, I'll be very happy to answer you. एक और Thank you, क्वेश्चन sir. है Hmm. from where I can get that is you can Google it because this domain is for our we are developing AMP. So we will discuss more about our associated Muslim professional where we are coaching this free of cost, and this session is also a free of cost. If you wanted to go with the companies, there are paid courses available. But I would say AMP is providing so many things which free of cost, and so you could encash this and get value out of it. But if you wanted to increase your reach and develop more skills, you can Google it and find it out. There is no harm in that case. That one anonymous attendee has written about company website, so I am my answer is related to that question. Okay, anybody else wants to ask anything else regarding job searching? And to inform you all, we are having again a job fair and job drive on 26th of January 2022. So all of you, we are AMP is almost every month we have one or two job fairs and job drives online. So you can go on the website of the AMP and search which is the current job fair going on. You can enroll yourself and you can get the job from there. So, if anybody wants to ask anything else, please type your question. How to connect with personality matrix for internship or part-time job? Sophia Sayed. Oh, I personally the metrics team, you can visit the website. You will you will understand what we are doing. Basically, if I would like to tell about personality metrics, we are targeting tier 2 cities and tier 3 cities candidates which are average and below average, and coach them and get them ready for the job market. Because क्या होता है, जो बड़ी cities के लड़के होते हैं, जैसे हम मुंबई से है, तो इनमें एक इनडायरेक्टली एक थोड़ी सी स्मार्टनेस और कम्युनिकेशन की चीजें इनबिल्ट रहती है, whereas this is something missing link for the tier 2 cities और जिनको थोड़ा शाइनेस रहती है। तो ये ब्रश अप करने के लिए कोर्सेस होते हैं वहां पे।
एंड इंटर्नशिप एंड पार्ट टाइम जॉब आई विल चेक विथ माय मैनेजमेंट, हमारी टीम से अगर कुछ निकल के आता है तो वी विल कम, विल रीच सोफिया सैयद, तो उस पे हम लोग काम करेंगे। एंड देयर इज अ what I would say communication address is given in a website lead@personalitymetrics.com, आप वहां पे रीच कर सकते हो। अदरवाइज माय ईमेल आईडी इज आल्सो देयर, atik.sheikh@gmail.com, atik.sheikh@personalitymetrics.com, आप दोनों पे रीच कर सकते हो। So we will keep in mind and we will reach you for the internship project if we have. Yes, sir. Very clear. I hope all of you have understood that how you have to contact. Send email in chat box, please. So please share your email ID with the students and attendees. Uh, and also, I have shared two links of today's two Yes. programs I, from dear students. Please register and try to join those sessions. So one session we have from 4 p.m. That is again a very wonderful session by a well-renowned trainer of our team. It is on personality development. So please try to attend to that and register yourself. And after that, we have a felicitation ceremony. You must be knowing if you are connected with the AMP. So you must be knowing that we had the National Talent Search exam in the month of November last year. So November and December. So you can even attend that felicitation ceremony from your home itself. The details again are in the chat box. So go there and register yourself and be connected to AMP. We all are working very hard to help you all in your career guidance, and we have trainers like Atik Sheikh sir, who are really very, very wonderful trainers, and they are all giving their services free of cost. So I would like to request you all to avail this opportunity. Sir, would you like to add anything else? Because no yes, yes. new questions are coming. Yeah, I will add. First of all, this AMP organization, I would say they are doing wonderful. I mean, for the community, and they are not expecting cost, or I mean, most of the courses or most of the sessions are free of cost, and this opportunity is a very big opportunity. So I would say to get the increase the reach and communicate to the others as well, so that they can also get benefited from these sessions. And definitely I mean our wishes are there with all of you. So whatever the things you planned yourself will in life, may Allah will shower all his blessings to you. तो इससे क्या होगा कि आप लोगों को भी फायदा होगा, सबको फायदा होगा। और ये एक जो कम्युनिटी जो बनाई है एएमपी की, इनका वर्क जो है बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से होता है। हम लोगों का जो सेशंस भी होता है एकदम प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से होता है। तो आई वुड से कि यूटिलाइज द टाइम एंड यूटिलाइज इट, so that and we increase our reach for the graph in terms of employed professionals of the community. So that's what all I wanted to say, and I would say all the best to the candidates who joined for this session. And if I am of a help of something, अगर ये मेरे सेशन से आपको नॉलेज में 10% 15% whatever the increase you reach to the level, and whatever the points I said, it is actually not easy to maintain and keep the record of whatever the jobs you have done. But trust me, if you follow this and you check yourself after 2 years or 3 years, you will find a wonderful change in yourself. So that's what I would like to say in this session. Yeah, that's it. Thank you, Aisha ma'am, because she in a so much cold in Lucknow coordinating for this session. So very good, Aisha ma'am. Thank you very much for the session. And that's it from iPhone iPhone 12 wants to speak something as they have raised their hand. If you want, I don't. The name is not written. you can. Please say something, whatever you want to say. I have given you the permission. Please conduct this
this session once again. Dear Farheen, Why? we have such kind of sessions again and again every week we have. So the links are shared on the same sources from where you have received this link. So you can join and again revise these things and polish your knowledge as well. So yes, sir, you want to add something? Please contact this session once again. Yeah, I mean this sessions link is available in our Ha, AMP yes. YouTube channel. आप, You can view the session many times as you want, and if you hmm. wanted to raise the question message there, I mean that will get answered. But definitely AMP comes out with always something new and gets new trainers, and I mean you always find something valuable once you attend an AMP session, whatsoever it may be, for the interview skill, CV writing, or yeah, few days back there was a session about CV writing. The Nadeem sir has explained in a detailed way how to write the CVs and everything. Alhamdulillah, I mean that will add value to the candidates. That's what I wanted to say. Seems like iPhone 12 has raised the hand by mistake and he or she don't want to say anything. So I'm again thanking Mr. Atik for an enlightening and entertaining presentation at the same time. And really, I find it so much wonderful that you put so much of effort in creating such a wonderful presentation, so many live examples. So all I want to say that students please benefit लीजिए ऐसे सेशन से. Yes, of course, because जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिले आपको उसको उसी वक्त अवेल करना चाहिए. We don't know whether later on we'll get that opportunity or not. It looks like we have covered all the questions and the session भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा रहा. Abdul Mannan wants to say something as he has raised his hand. Yes, Abdul Mannan, you want to say something? Please unmute yourself. Hello. Yeah. Yes, Abdul Mannan. Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम Walaikum रहमतुल्लाह. salam. अतीक भाई मेरा एक छोटा सा डाउट है, मुसलमान लोग बैंक में काम कर सकते हैं क्या? दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन. देखो क्या होता है कि इसको मैं आंसर करना प्रॉपर मुनासिब नहीं समझूंगा. शरीयत के हिसाब से अभी हम लोग भी अगर आप रिलेट करें तो हम लोगों के डिफरेंट मसाइल्स होते हैं और डिफरेंट मसले होते हैं. अब कहीं आप, मुझे नहीं पता आप किस मसलक और किस मसाइल को फॉलो करते हैं, बट इस आंसर को मैं ट्विक करूंगा कि हमारी जो कम्युनिटी है मुस्लिम्स है, वो अगर मुस्लिम कंट्रीज देखने जाए तो वो उस कंपनीज में भी बैंक्स तो है ही, तो वो लोग भी तो बैंक्स में वर्क कर रहे हैं. तो इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोवोगेटिव कि आपकी बिलीफ सिस्टम क्या है, आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, और आप किस वे में उसको लेते हो. तो इन इंडिविजुअल पे है कि आपको बैंक्स के जॉब अटेम्प्ट करने चाहिए नहीं करने चाहिए. मैं इस पे आपको क्लियर आंसर नहीं दूंगा कि आपने करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट विल बी अनफेयर फॉर मी, बिकॉज देयर आर अगेन इफ वी गो सो मेनी पीपल्स और थॉट प्रोसेस आर देयर, they say कि being a Muslim we should not get and involved into the money which is generated through interest part. But again there are the rulings also, they say कि you are participating in the journey and not into the interest part. सो ये मेरे मेरे लिए ये क्लियर यस और नो में आंसर तो है नहीं इस चीज के लिए. आप अपने हिसाब से सोच के अपने जो बड़े हैं उनसे बात करके आप इसको अटेम्प्ट कीजिए. बट यस, मैं आपको एक क्लू देना चाहूंगा. देयर आर द बैंक्स इन सऊदी अरेबिया, देयर आर द बैंक्स इन दुबई, देयर आर द बैंक्स इन मलेशिया, देयर आर द इस्लामिक बैंक्स इन पाकिस्तान. तो बैंक वर्किंग इज ऑल्सो ऑलरेडी देयर, और मोर और लेस मॉड्यूल हर जगह का सही रहता है, और वहां पे भी अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम्स लोग तो जॉब कर ही रहे हैं. तो ये आपका बिलीफ है कि आपको कैसे उसको लेना है. आई होप इट्स क्लियर फ्रॉम माय साइड. शुक्रिया. Yes, Mr. Abdul अल्हम्दुलिल्लाह. Mannan. First of all, ये एक ऐसा टॉपिक है या ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके लिए आपको हमारे ट्रेनर्स की बजाय यू मस्ट अप्रोच अ मुफ्ती फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंड थिंग, इस टॉपिक पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, उलेमा में इसमें इख्तिलाफ है.
सो आप बेटर है कि इख्तिलाफ में पढ़ने की बजाय जो डायरेक्ट कमांडमेंट्स हैं आप मुफ्तियों से पूछें और उसको फॉलो करें। और अगर कहीं इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम है विच इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दिस इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी सिस्टम, इफ यू गेट अ चांस टू वर्क देयर यू कैन। और अगर आपको जो है कोई फतवा आपके मुफ्तियों से ऐसा मिलता है जिस भी आप जो है मसला को फॉलो करते हैं, सो आप उनसे जो है रिलेट उनसे कनेक्ट करें और उनसे इसका जवाब हासिल करें। अदीश सर आपको बता सकते हैं जॉब कैसे हासिल करनी है, कहाँ करनी है, ये तो आप ही डिसाइड करेंगे सर। एग्जैक्टली परफेक्टली प्लेट आयशा मैडम आपने परफेक्टली प्लेस किया इसे थैंक यू Any other question from anybody else? Okay, that's it. It was a very wonderful session. This, I would like to wind up the session. I thank all of you to be present here and sharing your presence as well as your participation in the session. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.